Hello everyone, welcome back to the second session of capital hosting. So in the last session, we have discussed some basics about the capital budgeting. Then we have seen one question related to the NPV, net present value. After that, we have also done one question related to the payback period. Okay. So as you can see on the screen that we have already covered in the last session. Okay. That is the definition, importance of capital budgeting, key concepts in capital budgeting. After that, we have done net present value concept, then simple payback period. Okay, so in payback period, we have discussed that it is basically the time taken to recover its original investment. So payback period is what? It is a basically you can say कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा. ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी हैव डन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. और यहाँ पर हमने कंसीडर किया था कि सपोज मैंने अगर कहीं पर 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं. ओके, मैंने अगर कहीं पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ये मेरे को आने वाले 5 ईयर्स में कैश फ्लोज मिलेंगे. ठीक है, तो मेरा जो पेबैक पीरियड होगा सिंपल. सिंपल मीन्स विदाउट कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो ये मेरा पेबैक पीरियड कितना निकल के आएगा. तो यहाँ पर मेरे को क्या देखना होता है, मेरे को यहाँ पर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालना होता था. So as you can see, that is first 1,50,000. Then I have added 1,80,000 to 150. That is 3,30,000. Then we have added 1,20,000. So it is now 4,50,000. Then added 80,000. Now it is 5,30,000. So our original amount was 5 lakhs. Okay. So up to 3 year, we have recovered 4,50,000. And after that we have to recover 50,000 more because our original investment is 5 lakh rupees. ठीक है, तो हमको 50,000 और रिकवर करना था यहाँ पर. तो यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन दी है अप टू थर्ड ईयर 4,50,000, हाउ मच टू बी रिकवर 50,000 मेरे को मोर और रिकवर करना था. तो इन द फोर्थ ईयर हमारे जो कैश इनफ्लोज वो 80,000 हुए. सो इफ दिस 80,000 इज फॉर 1 year, so how much time I will take to recover the 50,000? So I just need to divide 50,000 by 80,000. That is 0.625. Okay, 0.625. So this 0.625, ठीक है, जो 50,000 मेरे को जो रिकवर करने फोर्थ ईयर में, यानी कि 6.625 ईयर्स मेरे को लगेंगे 50,000 रिकवर करने में. और 3 years मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. सो माय पेबैक पीरियड is 3.625. Okay, now the second is basically the discounted payback period. The discounted payback period. So in case of discounted payback period, we have to consider the time value of money, because हमने जो कैश इनफ्लो सिंपल वाले में लिए हैं वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने कंसीडर नहीं किया है. So when we are going to calculate the discounted payback period, we have to consider the time value of money. So for that purpose, I have taken one question. Okay, I have taken one question related to this. Just a minute, just. Okay, so let's start. A company is considering a project that requires an initial investment of $1 lakh. The project is expected to generate the following cash flows over the next 4 years. That is, in the first year 30,000, 40, 35 and 25,000, so on. Assuming a discount rate of 10% is given, calculate the discounted payback period. Okay, so in this question the discounting rate is given and क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. सो इट मींस वी हैव टू कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, सो दीज आर द फ्यूचर कैश फ्लोज. दीज आर बेसिकली द फ्यूचर कैश फ्लोज. ठीक है, ये फ्यूचर कैश फ्लोज हैं. फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, इनको मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना पड़ेगा. बेसिकली इनका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, चलिए करते हैं.
या सो सबसे पहले ईयर 1 2 3 4, ओके, देन कैश फ्लोज 30,000, $40,000, $35,000, $25,000. Okay, it is given in dollar. Now I will have to calculate the present value of these future cash flows at the rate of 10% per annum, present value factor. Okay, so first 1 divided by 1.10, that is 0.909, then 0.826, 0.751, then 0.683. Okay, now present value 30,000 into 0.909, 27270, 0.826 into 40,000, 33,040, 35,000 into 0.751, 26,285, 0.683 into 25,000, 17075. देन हमें इनका क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव, ओके, सो क्यूमुलेटिव 27270 first will remain same, then add 33,040 to the above, that is 60,310, then 26,285, that is 86,595 plus 17,075, that is 103,670. So these are my cumulative cash flows. My original investment, initial investment was $1 lakh. Okay, $1 lakh. So $1 lakh will be recovered in between of third and fourth year. In between of third and fourth year. So up to third year, we have recovered 86,595 dollar. Need to be recovered 13,405. Okay, and in the fourth year we have recovered 17,000. In the fourth year we have recovered amount $17,075. Okay, so if $17,075 recovered in the year 4 and we need to recover $13,405 more, so how much time we will take to recover the 13,405? So this will be 13,405 divided by 17,075. Both are in dollars. Okay, 13,405 divided by 17,075. So it's 0.785. Okay, so the discounted payback period will be 3.785 years. Okay, so this is discounted payback period. So it is like the simple payback period, but you will have to calculate the present value. You will have to consider the time value of money here. Otherwise, the concept and method is the same. Okay. Yeah. So this is the solution of the above question.
If you have not written down this, so you can take the screenshot. Okay, this is another calculation. You can take the picture or you can take the screenshot. Okay, so now NPV has done. We have done the second simple payback period or third discounted payback period. Now let's do the IRR, internal rate of return. The third, which is very important topic in finance, basically the internal rate of return, IRR, internal rate of return, internal rate of return. Okay, so what is internal rate of return? In simple sense, if present value of cash inflows, okay, if cash inflows are equal to present value of cash outflows, or you can say initial investment, leave it, ये present value छोड़ो, okay, initial investment. So if present value of cash inflow is equal to the present value of cash outflow, or basically the initial investment, then NPV will be zero. Then NPV will be zero. So IRR is the rate at which NPV becomes zero, or you can say IRR is the rate at which present value of future cash inflows are equal to the present value of cash outflow, that is initial investment. You can consider initial investment. Okay, so this is the rate. Or sometimes you will find that IRR is basically the minimum rate of return that a company is considering, that a company is expecting, a company expects to earn at least this rate. Okay, so IRR is basically the minimum rate of return that a company expects to earn at least this rate. Okay, so this is IRR. In simple term, IRR basically the rate at which NPV becomes zero, और NPV आपका जीरो कब आएगा जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्विवेलेंट हो जाए. ओके, बिकॉज हम एनपीवी निकालते कैसे हैं? हम एनपीवी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस, ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो इफ both are equal, so NPV will be zero. Okay, if present value of cash inflow is equal to initial investment, then NPV will be zero, and the rate at which you basically calculated the present value will be the IRR. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. चलो, बहुत इजी वे में हम इसको करेंगे विदाउट फॉर्मूला. ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को हमें समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, a project requires an initial investment of $50,000 and is expected to generate the following cash flows over the next 3 years. That is, in year 1 $15,000, 2 में $20,000 and in third year $20,000. Calculate the IRR. ठीक है, सो यहाँ पर हमको रेट दिया ही नहीं है. सो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम हिट एंड ट्रायल बेसिकली यहाँ पर करेंगे. यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली हमको एनपीवी कोई भी हम रेट एज्यूम कर लेते हैं. मेरे को चाहिए क्या, मेरे को दो यहाँ पर एनपीवी चाहिए. ठीक है, मेरे को दो एनपीवी निकालने हैं. एक मेरे को पॉजिटिव एनपीवी निकालना है इंटरपोलेशन करने के लिए, और दूसरा मेरे को एनपीवी नेगेटिव निकालना है. ठीक है, तो मैं कोई भी एक रेट एज्यूम करता हूँ पहले जिस पर मेरा एनपीवी कुछ भी है, देन अकॉर्डिंगली हम दूसरा रेट फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे. चलिए, तो आई एम एज्यूमिंग, मैं 10% एज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट केस में, एज्यूमिंग 10%. ठीक है, चलिए, सो ईयर 1 2 3 एंड मेरे जो कैश इनफ्लोज है यहाँ पर 15 20 एंड 30, 15 20 and 30,000. Present value factor at 10%, 0.909.
0.826, 0.751. Okay, then present value. Okay, so 15,000 into 0.909, it is $13,635. Then 20,000 into 0.826, that is 16,520. Then 0.751 into 30,000, and it is $22,530. So just do sum of these values. 13,635 plus 16,520 plus 22,530. It is 52,685. So NPV at 10%. NPV at 10%. So the present value of cash inflows 52,685, and initial investment was 50,000. Okay, initial investment was 50,000. So here $2,685 is the positive NPV. Okay, is the positive NPV. ठीक है. So अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये मेरा ज्यादा आ रहा है. ठीक है, एट 10% पे. अब मेरे को ये मेरा पॉजिटिव आ गया. मेरे को दूसरा जो एनपीवी चाहिए वो चाहिए नेगेटिव. अब मेरे को अगर एनपीवी को कम करना है तो मेरे को ये जो डिस्काउंटिंग रेट है ना, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा. देखिए मेरा भी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रहा है. कितने परसेंट पर आ रहा है? 10% पे आ रहा है. अगर मैं इसको कम कर दूं, ये मेरा सपोज यहाँ पर 45,000 आ जाता है. ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है? 50,000 है. तो उस केस में मेरा दूसरा एनपीवी नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस रेट को बढ़ा दूं. अभी मैं 10% पर डिस्काउंटिंग कर रहा हूं. अगर मैं इसको 15% पर डिस्काउंटिंग करूं तो क्या होगा? ठीक है, या 20% पर डिस्काउंटिंग करूं तो क्या होगा? तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं 20% पर डिस्काउंटिंग करूंगा, क्योंकि मेरे को दूसरा एनपीवी भी लेके आना है. ठीक है, तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट आपको पता रहे. मैं यहीं पर एक कॉलम और लिख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 20%. ओके, सो 20% पर 1.1 divided by 1.20, that is 0.833, then 0.694, then 0.578. Okay, then multiply by these values. 0.833 into 15,000, that is 12,495. Then 20,000 into 0.694, 13,880. 0.78 into 30,000, 17,340. अब इसका सम कर लेते हैं. 880 plus 12,290, that is 43715. So NPV at 20% is what? 43715 minus 50,000, that is 6285 is my negative NPV. Okay, so at 10% my NPV was positive, that is $2,685, and at 20% my NPV is negative. ठीक है, that is $6,285. तो अभी मेरे को क्या करना है? बहुत सिंपल से, विदाउट फॉर्मूला मैं आपको ये कैलकुलेट करा दूंगा. यार फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या देखना होता है? हमको दो चीजें देखनी है. पहले एक तो हमें देखना है रेट का डिफरेंस इन rate, basically the discounting rate. ओके, तो मैंने यहाँ पे 20% माइनस 10%, सो माय डिफरेंस इज 10%. ओके, क्योंकि एक एनपीवी 20% पर कैलकुलेट किया है, एक एनपीवी 10% पर कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो 10% का आ गया. दूसरा डिफरेंस इन एनपीवी, एनपीवी में डिफरेंस. ठीक है, तो मेरा जो पहला डिफरेंस मेरे को यहाँ पर देखना है, मेरा एक आ रहा था 20% में माइनस 6285. ठीक है, और उधर मेरा प्लस का आ रहा था, तो प्लस माइनस माइनस, दैट इज 2685. तो आप इसको ऐड करो, 6285 प्लस 2685, दैट इज डिफरेंस इन एनपीवी इज 89. डिफरेंस इन एनपीवी इज $8970. डिफरेंस इन एनपीवी इज $8970. ठीक है,
तो अभी मेरे को क्या करना है बेसिकली, अभी मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि मेरा 10% पर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। सपोज मैं मान के चल रहा हूँ मेरा सॉरी हाँ 10% पर मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं दो तरीके से अपना एनपीवी जीरो लेके आना है मेरे को एनपीवी क्या करना है, मेरे को एनपीवी को जीरो लाना है, मेरे को चाहिए एनपीवी जीरो। या तो मैं माइनस करूं यहाँ से 2685 तो मेरा जीरो आ सकता है, या यहाँ पर मैं प्लस कर दूं 6285 तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करें, ऐसे केसेस में हम देखिए टू ब्रिंग एनपीवी एट जीरो, अगर मेरे को एनपीवी को जीरो पर लाना है, ठीक है, कैन आई से कि रिड्यूस एनपीवी जो आपने 10% पर कैलकुलेट किया है बाय 2685, बिकॉज वो पॉजिटिव आ रहा था 2685 और उसमें से 2685 माइनस हो जाए देन मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया था डिफरेंस इन डिस्काउंटिंग रेट दैट इज 10%, देन डिफरेंस इन एनपीवी दैट इज 8। तो कैन आई से कि ये 10% के लिए इतना वैल्यू में चेंज आ रहा है, यानी कि अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट में 10% का चेंज कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरा एनपीवी में इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो 1% के लिए, सो कैन आई से फॉर 10% change in rate, okay, will, ठीक है, change the value of NPV by $8970। ठीक है, therefore for 1% change, ठीक है, 1% चेंज के लिए देखना चाहें, सो कैन आई से 8970 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ठीक है, या सो इट विल बी $897। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हर एक 1% रेट में चेंज करने से जो एनपीवी के वैल्यू में चेंज आ रहा है वो $897 का आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को चेंज जो लेके आना था वो इतना चेंज लेके आना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। इफ चेंज फॉर 1% इज 897 और मेरे को लेके आना है 2685, इतना मेरे को ये चेंज लेके आना है 2685 और 1% के लिए आ रहा है मेरा 897, तो पूरा लाने के लिए कितना आएगा 897, दैट इज अप्रोक्स 3% मेरा वैल्यू निकल के आएगा। अप्रोक्स 3% मेरा यहाँ पर वैल्यू 2.999 करके आंसर आ रहा है, दैट इज 3% अप्रोक्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द आईआरआर। सो ये जो हमने निकाला है ये वाला जो वैल्यू, इट इज ऑलरेडी, ठीक, ये इट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड एट 10%, एंड अभी हमने 3% और यहाँ पर ऐड करना है उसमें, सो दैट मेरा एनपीवी कितना आ जाए, मेरा एनपीवी यहाँ पर जीरो आ जाए। सो द एनपीवी विल बी, सॉरी, द आईआरआर विल बी 10% प्लस 3%, दैट इज 13%। ओके, तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बहुत सिंपल सा तरीका है, इंटरपोलेशन जैसे यहाँ पर किया है हमने। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अगर हम आईआरआर के यहाँ पर स्टेप्स हम कैलकुलेट करें, ठीक है, आईआरआर निकालने के लिए स्टेप्स, तो स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपीवी। ठीक है, एक हमें पॉजिटिव एनपीवी चाहिए, एक हमें नेगेटिव एनपीवी चाहिए। अगर आपका पहला वाला कोई भी, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो किसी भी रेट पर, अगर पहला वाला आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया है तो दूसरे वाले पर डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आपका नेगेटिव एनपीवी आ जाएगा। हमें दो एनपीवी चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, देन स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट डिफरेंस इन रेट एंड एनपीवीज। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेट का डिफरेंस, जो दोनों एनपीवी हमने निकाले थे उस रेट का, और उन दोनों का वैल्यू। एंड स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट
the change in NPV for 1%, ठीक है। एंड इन स्टेप नंबर 4, divide the required value by the value of change comes from 1% change। ओके, सो दीज आर द 4 स्टेप्स, ठीक है। पहले 2 एनपीवी निकाल लीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरे केस में आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, रेट का भी एनपीवी का भी। फिर ये देखिएगा अगर 1% पर कितना डिफरेंस आ रहा है मेरा, और उस 1% का डिफरेंस कैलकुलेट कर, उस 1% पर जो आपका चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो रिक्वायर्ड एनपीवी है, बेसिकली जैसे इस वाले केस में हमें क्या करना था, हमें 2685 माइनस करना था। तो मैंने 2685 को 1% की जो वैल्यू आई थी उससे डिवाइड कर दिया और लास्ट में हमने उसको ऐड कर दिया, दैट इज माय आई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर? चलिए, सो आईआरआर भी हमारा हो गया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। So, what is profitability index? So basically, it is a financial metric used to evaluate the attractiveness of an investment or projects. ठीक है? So it is a financial metric used to evaluate the attractiveness of an investment or project. Basically, use कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उन प्रोजेक्ट्स में से आपको रैंक करना है उनको, या हम कह सकते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो कम है, कैपिटल कम है, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आपके पास 4-5 ऑप्शंस और चारों पांचों कंपनी के फेवर में, बट एक चीज की लिमिटेशन है, दैट इज द कैपिटल। ठीक है, कंपनी के पास कैपिटल यानी फंड्स की कमी है, लेकिन जो सामने कंपनी के 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ही फेवरेबल हैं कंपनी के लिए। तो ऐसे केसेस में कंपनी किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कंपनी को फाइनेंशियली बेनिफिट दे रहे होंगे, हमको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली बहुत इंपोर्टेंट टूल होता है, बहुत इंपोर्टेंट टेक्निक होती है, जिसके बेसिस पर हम जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको रैंक कर पाते हैं। ठीक है, तो you can you see on the screen that profitability index is a financial matrix used to evaluate the attractiveness of an investment or project. It is the ratio of present value of future cash flows to the initial investment. ये बेसिकली हम अभी फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होता क्या है, बेसिकली present value of future cash flows divided by initial investment. This is profitability index. तो सिंपल है, जो अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी एनपीवी निकाले तो उसके लिए आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस निकाला होगा, उसको आप जस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिएगा। और फिर उसका हमें इंटरप्रिटेशन देखना होता है कि अगर मेरा ये वाला वैल्यू, इसको डिवाइड करने के बाद अगर मेरा पी आई ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर पी आई मेरा लेस देन 1 है, तो उस केस में मेरे को प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। और इफ पी आई इज 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब मैं ब्रेक इवन पर हूं। ठीक है, सो यू कैन सी हियर आल्सो, if PI, that is profitability index, greater than 1, okay, indicates that the project is expected to generate more values than its cost, that is acceptable. If PI is equal to 1 means the project is breaking even, that is indifferent, no profit no loss condition. But if PI is less than 1, it indicates that project is expected to generate less value than its cost, that is not acceptable. Okay, so this is all about profitability index, and this is the condition where we will use profitability index, particularly useful when capital is limited, and helps prioritize projects by comparing their relative profitability. ओके, तो जैसा मैंने बोला, जहां पर कैपिटल लिमिटेड है, ठीक है, और मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो सारे प्रॉफिटेबल हैं कंपनी के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, ऐसे केसेस में हमको प्रोजेक्ट्स को रैंक करना होता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है। तो
हम उसी को ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जिसका भी पीआई सबसे ज्यादा आ रहा होगा हम उसी को ही कंसीडर करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप सिंपल क्या करना, जो भी आपने एनपीवी है, जैसे ये मेरा एनपीवी था, ठीक है, और अगर मैं इसको 50,000 से डिवाइड कर दूं तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक है इसका कैपिटल बजटिंग का, उसको और देख लेते हैं, दैट इज कैपिटल राशनिंग। ये जो कैपिटल राशनिंग है ये भी कुछ कुछ आपका उसी पॉइंट से रिलेटेड है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में, दैट इज लिमिटेशन और बेसिकली द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हम कैपिटल की बात करते हैं कि कई बार हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं विच ऑल आर यूजफुल फॉर द कंपनी, विच ऑल आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, सारे के सारे कंपनी के फेवर में कंडीशंस हैं, बट हमारे पास उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, मतलब कैपिटल की लिमिटेशन है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं जहां पर कैपिटल की लिमिटेशन होती है, हम प्रोजेक्ट्स को राशन करते हैं, बेसिकली सॉरी प्रोजेक्ट को रैंक करते हैं। ठीक है, और कई बार हमें देखना होता है कि अलग हो सकता है हमें एक प्रोजेक्ट में अच्छा कॉम्बिनेशन, एक प्रोजेक्ट में हमें अच्छा रिटर्न ना मिले, कई बार हमें कॉम्बिनेशन में हमें देखना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको कैपिटल की राशनिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू द रैंक। ओके, जो भी प्रोजेक्ट्स की रैंक आ रही है उसके अकॉर्डिंग। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है और इसको पहले देखते हैं यहाँ पर ये कैपिटल राशनिंग है क्या। सो कैपिटल राशनिंग इज व्हेन ए कंपनी हैज लिमिटेड मनी, कंपनी के पास लिमिटेड कैपिटल है टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो इट हैज टू चूज व्हिच प्रोजेक्ट टू फंड, किस प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स में इनको फंड करना है, कंपनी हैज टू चूज। इवन इफ सम प्रोजेक्ट्स कुड मेक ए लॉट ऑफ मनी, okay, could make a lot of money, but the company might not have enough cash to invest in all of them, बट कंपनी के पास तो कैपिटल ही नहीं है। अभी हम वही बात कर रहे थे कि सारा का सारा प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कंपनी के फेवर में है, बट कंपनी डजंट हैव सफिशिएंट अमाउंट टू इन्वेस्ट इन दोस प्रोजेक्ट्स। सो दिस प्रोसेस हेल्प्स द कंपनी फोकस ऑन द मोस्ट प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, बट कैन आल्सो मीन मिसिंग आउट ऑन सम गुड चांसेस। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, a company has a budget of $1 lakh to invest in projects and has identified 3 potential projects with the following cost and expected returns. तो कंपनी के पास जो कैपिटल है वो फिक्स है, दैट इज $1 lakh, और यहाँ पर हमें कंपनी ने 3 प्रोजेक्ट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और 3 एक्सपेक्टेड रिटर्न है, बेसिकली यहाँ पर 90,000, यहाँ पर 70,000, यहाँ पर 60,000। अगर हम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को 60,000 खर्च करूंगा, $90,000 मिलेगा, दैट इज फेवरेबल। 50,000 इन्वेस्ट करूंगा, 70,000 अगेन फेवरेबल। 40,000 इन्वेस्ट करूंगा, 60,000 मिलेगा, अगेन फेवरेबल। तो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं? ठीक है, तो पहले तो मेरे को देखना होगा कि सारे के सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से कम का रिक्वायरमेंट है कैपिटल का। ठीक है, तो मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, अगर मैं किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूं तो इसका मतलब मेरे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो अंडर एलोकेटेड होंगे। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास 40,000, अगर मैं प्रोजेक्ट ए को मैं इन्वेस्ट करता हूं तो $40,000 अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन बनाओ तो कॉम्बिनेशन आप चेक करोगे, यानी कॉम्बिनेशन तो बनेगा ए एंड बी, ठीक है, ए एंड सी एंड बी एंड सी। तो ए एंड बी में करूंगा, ए एंड बी में मेरे को कितना रिक्वायरमेंट होगा, रिटर्न को भी छोड़ दीजिए, ए एंड बी में देखिए कितना रिक्वायरमेंट है। ए एंड बी में मेरे को 60 और 50 का रिक्वायरमेंट है, तो ए और बी का तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 60 और 50 1,10,000, बट मेरे पास तो केवल 10,000 ही, तो सॉरी 1 लाख ही है। ठीक है, तो 10,000 की कमी होगी, मतलब यहाँ पे दोनों में नहीं कर सकता। ठीक है, ए और सी में देखते हैं, ए और सी का मिला के मेरे को कितना चाहिए, ए और सी का मिला के मेरे को 60,000 और 40,000, 1 लाख रुपए मेरा ए और सी का हो रहा है। ठीक है, और रिटर्न में यहाँ पर कितना मिला, 90,000 प्लस 60,000। तो ए और सी का अगर हम बात करें, ए प्लस सी दैट इज 60,000 प्लस 40,000, और इनका रिटर्न बात करें, रिटर्न दैट इज 90,000 प्लस 60,000। ठीक है, और एक बार बी और सी का देख लेते हैं, बी और सी का देखेंगे तो 50 और कितना आएगा, 40, 90,000। उसके बाद भी मेरे पास $10,000 बच जाएंगे। तो इसका मतलब सही और एक ऑप्टिमल आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट करना है, बेसिकली कैपिटल राशनिंग करनी है, तो आपका आंसर होगा द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज ए प्लस सी, जहां पर आपके सारे फंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं और एक अच्छा रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कैपिटल राशनिंग। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कैपिटल राशनिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास लिमिटेड मनी है, हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है, लेकिन हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो कई सारी है। ठीक है, और सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो कंपनी के फेवर में। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, हमको ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है कैपिटल का, जहां पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के है और हमारे जो
फंड से ना तो उसकी कमी पड़े, ना तो शॉर्टेज पड़े, और ना ही हमारे जो फंड्स हैं वो आइडल जाए, दैट इज कैपिटल राशनिंग। ठीक है, सो वी हैव डन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ capital budgeting, except one concept is left, that is cash flow after tax calculation and modified internal rate of return. So for that purpose I will make 10 minutes video in the next by tomorrow. Okay, I will make one more video. Okay, so I hope it is understandable to all of you. Okay, so thank you so much, we will meet you in the next video.